So guys, welcome to another episode of In a Swamp. Social dancing is about comfort. Salsa dancing is about comfort. It is not vulgar dance form. Girl, but is it really true that you just need a female partner to dance with? जैसे बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल अफ्रीका से कुछ डांसर्स हैं, उन्होंने अपना कल्चर डाल दिया. जहाँ से भी आ रहे हैं वो अपना अपना एक कल्चर लेके आ रहे हैं. गिल्टी माइंड्स एक वेब सीरीज़ है ऑन अमेजोन प्राइम. उसके फर्स्ट सीजन में देयर वाज ए सीक्वेंस जहाँ पर मैं डांस कर रहा हूँ, सालसा डांस कर रहा हूँ श्रेया पिलगांवकर के साथ में. तो फॉर दैट सीक्वेंस आई हैड टू कोरियोग्राफ इट. Salsa without music is like नथिंग. okay. Salsa is music. So guys, welcome to another episode of In a Swamp. We are going to talk about salsa today, and welcome to our show, Nimish. Thank you so much. Thank you for having me over here. I'm very excited to talk about salsa and my dance journey. Yeah. So dance journey. So let's start with your first own salsa workshop. Like, how was it? Like, how did you feel, and how you got introduced to this salsa dance form? Actually, वो बहुत accident से हुआ. It wasn't planned. I went to meet some friend for a portfolio of my acting, and he suggested me to attend one of his classes. Okay. I went there, I attended it, and I had no idea about it. And yeah, that was it. I was a little bit nervous, but I guess वो हर कोई होता है फर्स्ट क्लास में. तो उसके बाद बस I never look back. But क्या अच्छा लगा फिर salsa to continue with that? I think it is about the connection, what you make with your partner when you're dancing with any particular partner, be it a guy or a girl. आप उनके साथ एक connection बनाते हो. It is also not about the steps. It has a lot to do about the music. अगर आप continue करते हो तो आपके अंदर एक वो seed grow होना शुरू कर देता है towards liking that music. It used to look very fancy when you're dancing with a girl, especially. I think more or less everyone started like that. So, yeah. Okay, so just now you mentioned about dancing with girl, but is it really true that you just need a female partner to dance with? Yeah. Or maybe opposite genders. Yeah, exactly. Thank you for asking me that question. वो जो मेरा myth है वो आगे जाके टूटा जब मुझे पता चला कि it is not gender specific dance form. Even if you are a girl or a guy, you can dance with each other, opposite genders, it doesn't matter. Okay, interesting. I mean, I was also not knowing about it. Yes. So as we are talking about myths, right? So what do you think, according to you, what is that biggest lie that people think is about salsa? बिकॉज हमने बहुत सारा टीवी में देखा है कि सालसा परफॉर्मेंसेस देखे हैं. लड़की को घुमाना या फिर लड़के को घुमाना, स्पिनिंग अ पर्सन इज सालसा. दैट्स व्हाट वी बीन लुकिंग एट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. डांस फॉर्म वहाँ तक सीमित नहीं है, उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक देर इज़ टेक्निक इन्वॉल्व, देर इज़ रिदम इन्वॉल्व, देर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डूइंग सालसा. बहुत सारी चीज़ें हैं. सालसा को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से दिखाया गया है फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ. रिप्रेजेंटेशन उसका जो है बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है अपार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनलिटी. Okay. और So what is that originality? Like, if we go back and see कि मतलब क्या exactly history था और how it got evolved and what is there today? सो द थिंग इज जब सालसा इवॉल्व हुआ तो सालसा इज अ म्यूजिकल जॉनर. Okay. इट वाज नॉट अ डांस फॉर्म अर्लियर. जब अमेरिकन लैटिन अमेरिकन जो म्यूजिशियंस थे, दे यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एंड वहाँ पर लोग आते थे, गैदर होते थे, सोशल गैदरिंग होता था. दे यूज्ड टू इंटरप्रेट म्यूजिक एंड दे यूज्ड टू हैव फन. एंड फ्रॉम देयर इट गॉट इवॉल्व. फिर कुछ बहुत बेहतरीन लोगों ने उसको स्ट्रक्चराइज किया उस डांस फॉर्म को. एंड या दिस इज सालसा फॉर यू एज अ डांस फॉर्म. Spinning a girl, throwing her in the air, or doing a lots of stunts in the performance is not really salsa. I feel. मुझे ऐसा लगता है कि salsa
का एक बहुत ऑथेंटिक साइड है, जो कि म्यूज़िक बेस्ड है, टेक्निक बेस्ड है, उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। एंड या वी वर टॉकिंग अबाउट मिथ। इसी मिथ की वजह से हम जो ऑर्डिनरी पीपल है, दे आर looking at it as a very difficult dance form. Okay. Yeah. So, like when we say ordinary people, but do you think कि सालसा को एक elite क्लास से डिफाइन किया गया है या फिर उसको एसोसिएट किया गया है? It is possible, yes. इंडिया में सी वी लिव इन इंडिया, हम हमारा एक कल्चर, And so many people they can't even make eye contact. एग्जैक्टली हमारा एक कल्चरल बैकग्राउंड है, और हमको अनफॉर्चुनेटली लाइक अपोजिट जेंडर से कम्युनिकेट कैसे करना है वो सिखाया नहीं जाता है सिंस द स्कूल। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे घरों में भी वो होता है कि आप लड़की से बात नहीं कर सकते, आप लड़के से बात नहीं कर सकते। सो वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो वहाँ से अगर आप देखो तो ये बहुत आपको अनरीचेबल लगता है। तो यू विल ऑल्सो फील के ये जो डांस फॉर्म है ये बस शहर में चलेगा या बस अर्बन एरियाज में चलेगा, ओनली एलिट पीपल कैन डू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लाइफ। इट हैज़ टू डू अ लॉट विथ योर ओन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। Right. Yeah. And if you see, it is a street dance form, right? It is. But when you see in maybe Bollywood movies or anywhere, it is like, उन्होंने एक से glamorous way से उसको represent Yes. किया. So that's Yes. why maybe I think people think कि हाँ, this is actually for certain class of people or certain. Yes, yes, yes. Unfortunately, we did not have the access to learn the dance form. इसलिए जो लोग बाहर से सीख के आए हैं, बस वो लोग यहाँ पे आकर कोरियोग्राफ करते थे, एंड उसकी वजह से वही हम मूवीज में देखते थे। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू शो समथिंग इन मूवीज, यू नीड टू बी, you see an exaggerated version of everything because they want people to look at it, interact with each other when they see anything like that. हाँ, तो वो exaggeration is also important to to reach to maximum audience। अगर वो आप वहाँ तक पहुँच पाओ तो आई थिंक ये सीन और ग्रो हो सकता है। जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा उतना ये नॉर्मलाइज होगा। सो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग जो ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो हम लोग मॉडर्नाइज या फिर जो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं सालसा का, तो वो इन योर ट्रेनिंग्स व्हाट डू यू डू डिफरेंटली टू कीप इट वेरी ऑथेंटिक एंड स्टिल ग्राउंडेड? Yeah, I would say, see, salsa is made of a lot of different elements coming together. जैसे बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल अफ्रीका से कुछ डांसर्स आए, उन्होंने अपना कल्चर डाल दिया। कुछ लोग जहाँ से भी आ रहे हैं वो अपना अपना एक कल्चर लेके आ रहे हैं। और सालसा ओरिजिनली it has a very vast syllabus. So there is so much to learn. Like you can learn throughout your life. If you just stick to your basics and keep building and learning the different styles of salsa, I think you don't need to modernize it. But it does not mean कि हम उसको modernize नहीं करते। As I said कि हमको अगर larger audience को approach करना है तो हमें थोड़ा बहुत उसमें obviously मसाला डालना पड़ता है। You need to modernize it, but obviously you can't leave the essence of it. In my class, when I teach salsa, I stick to very basics of salsa techniques. हम बहुत बारीकी से हर टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। And for example, if I'm teaching them one technique today, when you're dancing with a partner, I'll make sure that they do this thing at least 1,000 times before trying it actually on the social floor. And वहाँ पर भी आप उसको जब पूरे साल भर उसको प्रैक्टिस करते हो, then you look smoother when you do it. Okay. So I think it takes a lot of time to क्या बोलते हैं, it takes a lot of time to look good what जो भी आप मूवमेंट्स करते हो उसको। ओके। सो इफ यू ऑब्जर्व निमेश कि बहुत सारे लोग हैं वो देख के प्रैक्टिस करते हैं, खुद से सीखते भी है बहुत सारे लोग, राइट? एंड देन दे choreograph or they try to dance Yeah. salsa as a dance form, but sometimes it also looks robotic कि Yes. बोले ना एक मैकेनिकल कुछ चल रहा है, तो what do you think what brings smoothness or maybe some movement to it? Yeah. So when we teach salsa, we generally teach them on counts. तो हमको जब हम सिखाते हैं तब जो स्टूडेंट्स हैं हमें उनको हर एक काउंट पे क्या क्या हो रहा है वो ब्रेक डाउन करके सिखाना पड़ता है। एंड अगेन एज आई वाज सेइंग कि
अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो रोबोटिक ही दिखेगा. It will look like a very mechanical thing. You need to practice it a lot of times to get it right, to look smoother. Again, when you said कि बहुत सारे लोग देख के सीखते हैं, I wouldn't recommend that. I would recommend कि आप at least first initial stages of learning आप किसी के पास जाकर सीखिए. Then आपको वो पता चलेगा कि exactly टेक्निक क्या है. एंड इवन आफ्टर दैट मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इवन इफ़ यू आर लर्निंग विथ मी, गो होम, डू योर रिसर्च कि अगर आप सच में सही सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर रिसर्च. सो या. एंड यस, देर आर सर्टन लेवल्स ऑल्सो, राइट? तो फिर जो बेसिक वर्कशॉप होते हैं उसमें और जो एडवांस है तो उसमें एग्जैक्ट मतलब एक मेजर डिफरेंस क्या हो जाता है? आई थिंक बेसिक डिफरेंस इज वेरी सिंपल. जब आप बिगिनर हो, देन यू आर नॉट यूज टू लिसन टू दैट म्यूजिक, एंड दैट इज वाई it looks mechanical. Then again, 1 2 3 5 6 7, we have to break that. And when you go to advanced level, you are used to listen to the music, you are used to feel that rhythm. तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाती है आपके लिए to understand the technique also, because see, technique comes from the music. If the more you listen to the music, the more you get the technique. It is as simple as that. So it is because it is more of music than a dance. Yes, form, right? yes. Okay, interesting. And since it is more of music, I want to also understand what is that one moment where your body completely takes over your music? आई थिंक इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ लिसनिंग. मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप सुनो उस म्यूज़िक को, उतना ज़्यादा वो आपके बॉडी में आते जाएगा. Like what is different in that music? I think it is about the instruments, because when you start to understand the music, you get connected to it more and more. Then there are highs and lows. I think because the music we have at this moment, हमारे पास बहुत सारा लाइव रिकॉर्डेड म्यूजिक है, और जिसमें यू कैन लिसन के आप जो म्यूजिशियंस है वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बीट्स के साथ खेल रहे हैं, एंड देन यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज समथिंग इन योर डांसिंग. यू आर ट्राइंग टू लाइक interpret with your dance moves. It gets you to some other high. That is one thing I am very fortunate कि मुझे उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है हर बार जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ. Okay. And what is your special moment, like when, like any memorable moment where you really got into this salsa and you're enjoying to the core? सो 2013 में मैंने डांस शुरू किया, सालसा सीखना शुरू किया, एंड बिफोर दैट आई यूज टू डांस जैज. 2013 के एंड में वी वेंट टू दिस डांस फेस्टिवल इन दिल्ली. सो वहाँ पर आई वॉज डांसिंग विथ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट. शी वॉज अ डिवा एट दैट टाइम, एंड मतलब अभी भी है. और उनके साथ डांस करते हुए, सी आई डिड नॉट हैव मेनी मूव्स बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग एट दैट टाइम, बट एज आई वॉज जस्ट डूइंग माई बेसिक्स, एंड आई वॉज वॉचिंग हर फेस कि वो जिस तरीके से खुश हो रही है. आई वॉज नॉट डूइंग लाइक सो मेनी थिंग्स सो दैट वो कंफ्यूज हो जाए, या फिर उनको ऐसा लगे कि यार वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. तो उनको देख के मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन फील हुआ कि सी आई एम able to make someone happy, and to see that even I am feeling very happier. I think that was the moment for me कि मैं भी enjoy कर रहा हूँ और अगला इंसान भी enjoy कर रहा है मेरी वजह से. I think that was the turning point for me. Yeah. Nice. Yeah. So, Nimish, let's talk about the salsa community right now. So, can you just enlighten us ki what is happening currently in your community? See, in Latin dance community in India at this point of time, there are different dance forms. जैसे साल्सा है, बचाता है, किज़ोम्बा है. तो उसको there are socials happening everywhere. Socials as in there are social gatherings जो जनरली आजकल पब्स में होती है, Right. बड़े I've बड़े. seen lot of your videos. Yeah. Happy about it. या सो बड़े बड़े क्लब्स में होती है, तो जहाँ पर लैटिन म्यूजिक प्ले होता है, जैसे देर आर डेडिकेटेड डीजेस हु प्ले लैटिन म्यूजिक, एंड यू गो देयर, यू आस्क एनी रैंडम पर्सन ओवर देयर टू डांस एंड यू डांस. तो वो सारी चीज़ें हो रही है आजकल में, एज़ कम्पेयर टू जब मैंने स्टार्ट किया था. नाउ देर आर
many socials happening in our city. और मुझे ऐसा लगता है कि हर बड़े सिटी में there are socials happening. सीन ग्रो हो रहा है, बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, जितना कोविड के पहले जितने पेस से हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा पेस से अभी सीन ग्रो हो रहा है. सो आई थिंक इट इज़ गुड कि जितना कम्युनिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगा उस चीज़ का. Okay. And just social media is also helping a lot, I guess, because Yeah. these days, like people actually know the different dance forms because of this. Otherwise, it was like कोई भी अगर लड़का लड़की के साथ कोई डांस मूव कर रहा है, it is Salsa. yeah, it is salsa. I mean, everyone used to Yeah, think that it is a salsa. Yeah. So can you just give us some understanding of different dance forms जो confuse है लोग अभी? So, as I was saying, there is bachata, there is kizomba, there is rueda, there is tango, there is zouk, और भी बहुत सारे जाइव हैं. ऐसे बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, पार्टनर डांस फॉर्म्स, जिनको देख के जनरली आप कंफ्यूज होते हो कि अरे नहीं ये तो सालसा ही है. So then हाँ. what is that difference? टेक्निक वाइज इट्स डिफरेंट. मुझे ऐसे लगता है कि ऑल्सो म्यूजिक इज लिटिल डिफरेंट. तुम बहुत सारी चीज़ें हैं इस सबको आइडेंटिफाई करने के लिए. एक तो है म्यूजिक, दूसरा है टेक्निक. अगेन द फुटवर्क, द काइंड ऑफ मूव्स यू आर डूइंग इज वेरी डिफरेंट. सो आई थिंक ऑल्सो यू वर टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया थिंग. मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने हेल्प किया है बहुत ज़्यादा कि हम जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके. बट देर इज़ ऑल्सो वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया के just because you have followers and you can reach up to many people, वहाँ पर बहुत because unfortunately सालसा जो डांसर्स है अभी फ़िलहाल इंडिया में, उनकी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है सोशल मीडिया पर एज़ कम्पेयर टू अदर डांस फॉर्म्स के जो डांसर्स है. Okay. हाँ. Why do you think so? आई थिंक वही जैसे हमने पहले से एड्रेस कर रहे हैं कि लोग समझते हैं कि ये एलिट डांस फॉर्म है, बहुत सारे मिथ्स हैं सालसा को लेकर, इसलिए वो अप्रोचेबल नहीं है. दैट इज़ वाई नो वन. एक तो किसी Because को मुझे जितना पता है, आई मीन जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, बिकॉज इन इंडिया संगीत जैसे फंक्शंस में वेडिंग्स में वगैरह यस सालसा अगेन लाइक इट्स मे बी आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मे बी बॉलीवुड स्टाइल में जैसे दिखाया जाता है वैसे ही प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. बट when we actually get into it, like if I go to any social media page of a salsa dance form or a community, na. So if I go to any social media page of any salsa dance form and if I go get into the technical part of it, it looks like नहीं यार बस हो गया इतना कौन करेगा types. या आई अंडरस्टैंड. द थिंग इज ना कि मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर अगर एक अच्छी साइड भी है तो एक बुरी साइड भी है. Because like sorry to cut you, but majorly videos जो आते हैं वो आफ्टर के वीडियोस आते हैं, बिफोर के कोई मतलब एग्जैक्टली. टेक्निक वाले वीडियोस तो बहुत कम है. हाँ, एग्जैक्टली. तो उसकी वजह से इट इज़ वाई वी डोंट हैव मच फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया. बट या टाइम्स आर चेंजिंग. people are more likely to enroll for technique based classes, and I think even for, as you were saying, sangeet, I'm doing a lot of sangeets. I'm sure कि बहुत सारे सालसा डांसर्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो कि संगीत कर रहे हैं. एंड नाउ इट इज़ द टाइम जब वो एक्चुअल टेक्निक इन्वॉल्व कर रहे हैं उस सिनारियो में. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो या Nice. I mean, जो अभी इवॉल्वमेंट है that is going to really help the community, I feel. यस. And with that, I also want to ask you one thing कि आपके कई सारे फ्रेंड्स रहेंगे, नेटवर्क रहेगा, राइट? कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ये सालसा डांस फॉर्म क्विट करने का सोचा है एंड यू हैव हेल्प हिम और अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत बार हुआ है. मैंने मेरे बहुत करीबी दोस्तों को सालसा छोड़ते हुए देखा है. एंड अनफॉर्चुनेटली आई सी इट वेरी ऑफन. क्यों? एक तो सी दिस इज़ अ सोशल डांसिंग फॉर्म एंड इट स्टार्ट्स विथ पीपल कमिंग टू सोशल गैदरिंग. बहुत सारे बार हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है दे आर the people who are they are working whole day and then after office they want to just chill and then they want to come to the socials to have a good time, but then they don't have technical background. तो एक टाइम तक वो वहाँ पे डांस करने की कोशिश करते हैं एंड देन व्हेन दे सी माय डांसिंग इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर,
देन दे क्विट. अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक क्रिएट नहीं हुई है सालसा के लिए जितनी अदर डांस फॉर्म्स के लिए हुई है, जैसे हिप हॉप के लिए समझ लो या फिर क्लासिकल डांस फॉर्म्स के लिए समझ लो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फॉरेन कल्चर फॉर अस. तो उसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी हुई है. It is very painful to see that, but unfortunately this is what it is. I think And what do you do to like, support them or like maybe get back to the salsa world again? आई थिंक मैं एक बार में एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ सो मच टू लर्न एंड देर यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस एज वेल. कीप योर सेल्फ इंडल्ज इन टू दैट ट्रेनिंग ऑलवेज. ट्राई टू डू न्यू थिंग्स जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल some if you are dancing for a very long time, then try to choreograph something, or try to teach something, take workshops. If you indulge yourself in that scenario, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा. प्लस सोशल डांसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. अगर आप सोशल डांसिंग जितना ज़्यादा कंटिन्यू करोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा. अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन पीपल गेटिंग बोर्ड ऑफ म्यूजिक एज वेल. Okay. तो ये इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक के जो सालसा डीजेस है या जो लैटिन डीजेस है उनको भी अपना गेम हमेशा like top game रखना पड़ेगा so that people don't get bored of listening to the same music again and again. So yeah, there are a lot of factors to it. I mean, thanks for sharing that information. It's something really serious, and I think some लोगों ने support करना चाहिए. A lot of salsa social media pages and communities, right? Yes, yes. So, you're also an actor, Ramesh, right? Yes. So, salsa help करता है acting में? हाँ बिल्कुल करता है. When you are see any art form, be it salsa or take painting. सो हर चीज़ में आपको एक इमेजिनेशन का फ्रीडम देती है. एक्टिंग के टूवर्ड्स आपका एक फ्री इमेजिनेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन वो मुझे मिलता है मेरे डांस से, सालसा से मिलता है मुझे. बिकॉज व्हेन आई एम सोशल डांसिंग आई एम इम्प्रोवाइजिंग every single moment. So I think that is very very important to me. Also, when I'm acting with some co-actor, तो उस टाइम पे उसके साथ जो केमिस्ट्री होती है, बी इट सेम जेंडर और अपोजिट जेंडर, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू interact or Be comfortable. yeah, be comfortable with them. Maybe if there is some physical touch involved, it takes a lot to express yourself. मुझे ऐसा लगता है कि सालसा हेल्प्स मी इन दैट एरिया बिकॉज आई एम यूज टू बी इन सर्टन एनवायरनमेंट एंड उसकी वजह से फिर चीज़ें और ज़्यादा ईज अप होती जाती है मेरे लिए. Okay. And I've also seen you one of the web series where you appeared as a salsa choreographer, right? यस. सो मुझे एक कॉल आया एक डायरेक्टर से. दे वर मेकिंग अ वेब सीरीज एंड उनको एक सालसा डांसर की ज़रूरत थी जो एक्टिंग भी कर सके. आई थिंक उसके बाद में चीज़ें उसके बाद में सारी चीज़ें ऑन बोर्ड होती चली गई. गिल्टी माइंड्स एक वेब सीरीज़ है ऑन अमेजोन प्राइम. उसके फर्स्ट सीजन में देयर वाज ए सीक्वेंस जहाँ पर मैं डांस कर रहा हूँ, सालसा डांस कर रहा हूँ श्रेया पिलगांवकर के साथ में. तो फॉर दैट सीक्वेंस आई हैड टू कोरियोग्राफ इट. आई एम डांसिंग देयर विथ हर एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. So, how different it is, like performing live and get shot in a series or something? आई थिंक आई एन्जॉयड इट. जितना मैं सोशल डांसिंग एन्जॉय करता हूँ कि वहाँ पे इम्प्रोवाइज होती है चीज़ें, शूट पर भी मुझे उतना ही ज़्यादा मतलब बहुत मज़ा आया. बिकॉज द डायरेक्टर शेफाली शी वॉज वेरी काइंड के उन्होंने मुझे बोला था कि तू यू डोंट वरी अबाउट एनी थिंग, यू जस्ट टिक टू योर डांसिंग. शी जस्ट वॉन्टेड अस टू हैव अ गुड टाइम, मी एंड श्रेया. सो उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होती चली गई मेरे लिए एंड आई हैड अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. Great, eh? Yeah, that's how it helped you as an actor. But Yes. also, I want to understand as a human, as a person, how salsa helped you. एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. सालसा की वजह से मेरी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुई है. फर्स्ट थिंग इज़ कि जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो ह्यूमन टू ह्यूमन बेसिस, अगेन इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस टू ओपन अप टू पीपल. अदर थिंग इज़ कि व्हेन यू आर डांसिंग सोशली, इफ़ यू आर अप्रोचिंग समवन,
it is very important to take that consent. You know, that understanding of consent is very important. We don't take people for granted. We take their permission to dance with them. So it is very very important aspect of it, जो मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत उसकी हेल्प मिली. ऑल्सो हाउ टू पोर्ट्रे योर सेल्फ इन पब्लिक, इट्स वेरी वेरी क्रूशल टॉपिक जो हमको सिखाया नहीं जाता. आई फील हमको अब तक जो सिखाया है वो बहुत कल्चर बेस्ड ट्रेनिंग हुई है कि नहीं नहीं बड़ों के सामने झुक के रहो, ये करो वो करो वो करो, लेकिन उसका बेस कभी सिखाया नहीं जाता. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम डांसिंग सोशली और मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ, किसी लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ एंड इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, भले ही मैं इसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई नीड टू act in a certain way. I need to act, responsible. I can't, just pull her hand or something like that. Even if she's a very good friend of mine, she's my girlfriend, she's my wife, doesn't matter. वो sense of awareness बहुत ज़्यादा important है. And this is what I teach to my students always in first class. When you go and approach any person to dance with, always go there like, hey, hi, my name is Nimish. Would you like to dance with me? And if they say yes, you obviously dance with them. If they say no, say thank you, smile and then leave. So this is very important कि अगर आपको कोई मना कर रहा है तो respect that. And I think it is a very important quality to learn. Even I have learned that through my movement classes. Yes. So it doesn't involve any language, right? Yeah. All about your body. I mean, it's all about your touches. Yes. And nudges that you Yes. do with your partners. Yes. So when we have this workshops where you have multiple people, doing movement together. Yeah. So it's the same way, like you just get in contact with someone. Yes. If that flows, that flows. If that does it, then just Then just go leave. away. Yeah. And you don't feel anything negative about it because it is something, a comfort which is important. Exactly. See, social dancing is about comfort. Salsa dancing is about comfort. It is not vulgar dance form. And it is also not a prestige कि हाँ मैं exactly. किसी लड़की के साथ या किसी भी साथ डांस कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. अनफॉर्चुनेटली हम सब लोगों को वो स्टार्ट से ऐसे ही दिखाया जाता है कि हाँ हाँ आप लड़की के साथ डांस कर रहे हो. जब आप यंग होते हो, आप व्हेन यू आर इन स्कूल और इन कॉलेज, यू वांट टू गेट इन दैट जोन जहाँ पे आप अपोजिट जेंडर से बात कर सको. सो दैट इज हाउ पीपल आर इंट्रिग्ड टूवर्ड्स इट. बट I don't think that is a good way to go ahead with it. And do you think a lot of people in India might, like, they are afraid of rejection? That Yeah. the thing that they are not opting for this kind of dance. That is a very very important thing कि people take it personally कि अगर आपको मैं मना कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, then you are taking it personally कि नहीं आपने मुझे ही कैसे मना किया. So that sense of awareness you need to always carry. और कैसा होता है ना कि see this dance form, they call it couple dance form, but it is a partner dance form. There's a difference. Social dance. हाँ, it's a social dance form. You can dance it with your wife, girlfriend, friend, teacher, father, mother, brother, anyone. Again, if you feel कि अगर आपका intention सही है तो हर चीज़ सही है. अगर आपका intention गलत है तो हर चीज़ गलत ही है. So you need to be very clear about that. I was really happy. I would share one story. Like when I was in Jaipur, we went to this hotel. Like it's a Taj property somewhere. It had this vintage railway, and on they have created this platform, and there was this Latin music was played, and there was this very old uncle. He was dancing, and there's this very young female. I mean, they were dancing together, and it was like they were not knowing each other, and that was so nice. And their partners were so happy to see, and it was so impromptu. And the musician that you were talking about, the highs and lows. Yeah. As soon as they started dancing, the music changed. Yes. So exactly. The thing is कि that is the time when you see music. You don't listen to the music. You actually see music. When people are happy. Yeah, earlier everyone was sitting on there, they were having it, and as soon as the dance started, everyone was like, okay, they were enjoying music. Yes, exactly my point. तो वो उस पॉइंट तक पहुंचने का गोल है अल्टीमेटली. इट डज नॉट मैटर कि आप कितने एडवांस डांसर हो. व्हाट मैटर्स कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो. इट मैटर्स कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो.
अगेन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. इट इज़ अबाउट द कंफर्ट. अगर आप कंफर्टेबल हो तो सब सही है. Thanks for those tips, Thank Nimesh. you. So Nimesh, I'm really interested to know and very keen to know कि आपका first workshop कैसा था and how you started. एक्चुअली आई स्टार्टेड डांसिंग सालसा इन 2013. Okay. और मैं एक फ्रेंड के साथ उस सालसा क्लास में गया था. पहले तो आप बहुत ही नए होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि ये क्या है. इट ग्रोज ऑन यू. एंड व्हेन आई वाज डांसिंग विथ अ पार्टनर, यू नो इट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ अवेयरनेस कि आप किसी और इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो म्यूज़िक शेयर कर रहे हो, वो मोमेंट शेयर कर रहे हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है. एंड आई थिंक इन माई फर्स्ट वर्कशॉप आई वॉज मोस्टली नर्वस कि ये क्या हो रहा है. एक तो आपको आदत नहीं होती है एक अपोजिट जेंडर के साथ डांस करने की. यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल डांसिंग विद देम. सो इट वॉज मोर ऑफ यू नो कि क्या चल रहा है, इज शी ओके विथ मी टचिंग टू हर बॉडी. तो या इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन फर्स्ट क्लास बिकॉज आपने तो देखा है बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज में आपने देखा है कि वहाँ पे यू नो पीपल आर डांसिंग वेरी क्लोज विथ ईच अदर. तो वो एक फोबिया भी था माइंड में बट इवेंचुअली इट टर्न आउट वेल. Okay. So now after 12 years, Nimesh, after all these practices, it must be very easy for you, right? What happens exactly before now any performance that you do? ओके, परफॉर्मेंस वाइज आई वुड लाइक टू से कि परफॉर्मेंस में आप कितनी भी बार परफॉर्म कर लो आप हमेशा नर्वस होते हो. एंड इट्स अ गुड नर्वस एनर्जी बिकॉज यू नीड टू, यू कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि वो सारी चीज़ें आप इंजॉय करते हो उस दैट काइंड ऑफ नर्वसनेस बिकॉज आपने बहुत साल दे दिए इसको और आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो. लाइक 10 minutes 15 minutes बिफोर द परफॉर्मेंस इज़ लाइक यू नीड टू एन्जॉय योर सेल्फ. मैं जिस किसी के भी साथ परफॉर्म करता हूँ हम हमेशा परफॉर्मेंस के पहले हम प्रेयर करते हैं. और हमको हमेशा प्रेयर में बोलते हैं कि हमने अब तक बहुत प्रैक्टिस कर लिया. जो हमको सीखना था, जो हमको कुछ भी टेक्निक वाइज ये करना था, प्रैक्टिस करनी थी, वो हमने कर ली है. अभी हमको एन्जॉय करना है, यू नो. सो हार्डवर्क वाला पार्ट हो गया है. जो डांसिंग पार्ट है इज़ द एन्जॉयमेंट वाला पार्ट. सो वी जस्ट गो देयर एंड एन्जॉय. And I think those butterflies are really important, right? Before those, 10 seconds of your performance, because that is what, makes you look forward to something. Otherwise, it's just, I know everything and I'm dancing. एग्जैक्टली इट कीप्स यू ऑन टोज. और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग बोर होकर छोड़ देते हैं. आई फील कि अगर आप इंट्रीग नहीं हो तो आपका बोर होना बनता है वहाँ पे. अगर आपको ऐसे कोई चीज़ रोक नहीं रही, आपकी क्यूरियोसिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके. दैट गिव्स यू दैट यू नो पुश कि आप और उसको सीखते जाओ और उसको एंजॉय करो. मुझे ऐसा लगता है कि दैट कीप्स मी ऑन टोज. इसलिए बस वही करना है. Nice. Okay. And Nimish, what about reality shows? Have you ever participated in reality shows? Any experience that you would like to share with it? अनफॉर्चुनेटली मैंने अब तक कोई रियलिटी टीवी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया है. आई हैड अ लॉट ऑफ रीजंस के पहले आई वाज नॉट ट्रेन. एंड जब तक मैं ट्रेन हुआ आई थिंक तब तक मेरा एक्टिंग का करियर भी साथ ही साथ बढ़ रहा था. देन आई डिड नॉट गेट टाइम टू यू नो इंडल्ज इन टू इट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आपके 6-8 महीने एक पर्टिकुलर सीजन को लेकर वो ब्लॉक होते हैं. आई कुडंट अफोर्ड दैट. सो Okay. And what are your views about it? वहाँ पर जो भी दिखाते हैं रियलिटी टीवी शोज़ में, मैं पहले की बात नहीं करूँगा जब वो रियलिटी टीवी शो स्टार्ट हुए थे. आई डिड नॉट लाइक द काइंड ऑफ कंटेंट दे यूज टू शो अस इन द नेम ऑफ सालसा. जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ बिकॉज इनिशियली हमको पता नहीं था, मैंने तब तक सीखा नहीं था. जब मैंने सीखा तब मुझे लगा कि ये जो हो रहा है रिप्रेजेंटेशन वो गलत हो रहा है. बट फॉर्चुनेटली नाउ देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेंड सालसा डांसर्स कोरियोग्राफर्स इन द इंडस्ट्री, इन द रियलिटी टीवी शोज ऑल्सो, हु आर शोइंग द ऑथेंटिक वे. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन आई वाज सेइंग कि आपका वो एग्जैजरेशन दिखाना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो लार्जर पब्लिक को यू नो लार्जर मास को वो ये करता है, अप्रोच Engage करता करता है, एंगेज करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So Nimish, thanks for this wonderful conversation और इतने सारे insights आपने share किया about salsa. Even I got to know many things today because of you. Thanks for that. And to close this show, I have one rapid fire. So let's have some fun also. लेट्स गेट इनटू इट. Yeah. Okay. So you ready, Nimish? यस. This or that, lightning round. Uh, leading or following? लीडिंग.
Cuban or LA style? New York style salsa. Okay, is there anything different? Yeah, technique is a little bit different. Okay. Competition or social dancing? Social dancing, Morning practice or midnight sessions? midnight sessions. Why? I think I'm not a morning person. Okay. Solo shine or partner connection? Yeah, partner connection. You can call it partner work as well. Partner work. Yes. Yes. Now fill in the blanks, because salsa without music is like, Nothing. okay, Salsa is music. the best dancers are always Sweating. sweat. I dance salsa because, I like the improvisation. okay, when I'm 80, I'll be still Dancing. dancing. Social dancing. Okay. So, Nimish, some controversial questions. What's the most underrated thing in the salsa world? Uh, Basic social dancers. Okay. Yeah, unfortunately, people are not looking at social dancers as they look towards performers, you know. So I think they are very underrated people. Okay. Then, which salsa rule do you love to break? I think it is all about learning the rules and then breaking them Your own ways. in your own ways. Okay. What trend in salsa dancing drives you absolutely crazy? One good and one bad. So, so we have a tradition called birthday dance. Okay. Basically, in social dancing, if it is your birthday or my birthday, we'll have a birthday dance. Basically, I will be dancing with all the people. People will be, taking their rounds and dance with you. Good thing is it's a very sweet thing, to celebrate with everyone. Bad thing, people are not really, they are not aware of consent anymore. I would really like to address this thing. Whenever you are doing birthday dance with, like, you are giving birthday dance or doing birthday dance, please be aware. Please be aware of this, of the space. Please be aware of how are you touching the other person. It is very, very important. You are there in a public setup. You need to act certain way of being respectful towards other dancers. So please be aware of it. And Nimish, any last message or any last whispers that you want to, share with all the salsa lovers? Don't be afraid. प्लीज़ 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 स्टार्ट डांसिंग एज सून एज यू वांट टू. हम यहाँ पर बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, आपके साथ डांस करने के लिए. लड़की को घुमाना सालसा नहीं है, लड़की को हवा में फेंकना सालसा नहीं है. आप आप बिंदास आइए, अपने फैमिली के साथ आइए. आई हैव स्टूडेंट्स जो कि एक पूरा लाइक 3 जनरेशन साथ में आते हैं मेरे क्लास में. सो यू कैन कम, learn, have fun, and this is how we grow our culture as well. So thank you. So, Nimish, how was it? It was a very nice experience. Thank you so much for having me. I had a very open discussion about all the topics, be it controversial, be it fun. ये चीज़ें बाहर आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि और डांसर्स आए, सालसा डांसर्स स्पेसिफिकली बाहर आए और वो बात करें सारी चीज़ों के बारे में. एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर रिसर्च एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सवाल पूछे. यू डोंट हैव टू be afraid of asking controversial questions because you obviously you have a job to represent the community as it is. So thank you so much. I hope I answered all your questions and मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट सबको पसंद आए. थैंक यू, थैंक यू. मुझे ऐसे लगता है कि निमिष ने बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है बुलाया.